back with our online session, and this session is for class 9 social, and we will study politics part. This notes are to be written in your politics notebook, and we were taking lesson number 1, that is what is democracy, why democracy. This part आप जो मैं explain कर रही हूँ वो आपके पेज नंबर 9 से start हो रहे हैं till the end of the chapter. So in last lecture we had studied what is democracy. So what is democracy? Let's have a recap. Democracy is government which is entirely elected by the people and it works for the betterment of the society. Right? Now today we are going to learn about why democracy. Means democracy की जरूरत क्यों है? Why do we need democracy? And what are the points in favor of democracy and what are the points against democracy? So let's start. Arguments for democracy means these are in favor. कि democracy क्यों होनी चाहिए? It shows the advantages of the democracy. So first, it responds to the needs of people. Means in the times of crisis, जैसे आज if anybody is under poverty or if there is any natural disaster, so जब लोगों को जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की तो गवर्नमेंट हेल्प करती है. It helps the people in the need. So it responds to the needs of people. So here we can have a short case study. Like we have example of India on one hand and China on other hand. So it is the decade of 1958 to 1961 when our India had just a decade. It मतलब 10 साल हो चुके थे सिर्फ इंडिपेंडेंस के बाद. और उस टाइम in China there took a severe famine in the history of the world which is recorded. मतलब इतना बुरा famine था. Famine means अकाल, where there is a scarcity of food, shortage of food. So that time in China means crores or millions of people died due to hunger, due to starvation because they had lack of food. But such type of situation never arise in India because in India we have a democracy, democratic form of government. This is ruled by the people and for the people, and government is chosen entirely by the people. So government has to work in accordance with the people. जो जरूरत लोगों की उसके हिसाब से गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ता है. एंड ऑन अदर हैंड वहीं पे चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. It can look either after the government or it can work for its own benefit also. Right? Next up, it is more accountable form of government. Accountable मतलब जवाबदेह. It is accountable. It is answerable to the people. कैसे जवाबदेही तय होती है हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की? जैसे we have elected, हम इलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को. They sit in the सांसद भवन, लोकसभा, and there they discuss the problems of people and they have to take decision for the betterment of people. Next, democracy improves the quality of decision making. How it improves the quality of decision making? Like one issue is discussed among many people. Like लोकसभा में कितने लोग होते हैं? 545 मेंबर्स होते हैं वहाँ पे. तो एक कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उस डिसीजन को वहाँ प्रेजेंट करना पड़ता है, पहले उसको डिस्कशन में लाना पड़ता है, फिर उसको एक कमेटी उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके सारी चीज़ों को एनालाइज करते थे. एनालाइज एंड एट लास्ट इट इज सेंड फ्रॉम लोकसभा टू राज्यसभा एंड देन टू प्रेसिडेंट असेंबली स्टेटमेंट. सो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है. उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाता है. सो डिसीजन टेकन बाय डेमोक्रेसी is almost accurate in form. Next, democracy provides method to deal with differences and conflicts. Means in a diverse country like India we have many religions, many castes, many race and बहुत सारे ethnicity के लोग, diverse people live in India and they can have conflicts also. Means conflict होता है ना, majority group dominate the minority group. तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या गारंटी किया है? माइनॉरिटीज को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है. उनको एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनको रिजर्वेशन दिया है. उनके लिए नए नए स्कीम्स लॉन्च होते रहते हैं. आए दिन नए स्कीम्स आते रहते हैं उनके लिए. सो इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. यहाँ पे अगर झगड़ा हो जाए डेमोक्रेटिक नेशन में तो आपको सिर्फ एक ही रास्ता है आपके पास. यू हैव टू सेटल द कॉन्फ्लिक्ट
and differences through peaceful means. कोई झगड़ा, कोई किसी मेजॉरिटी के फेवर में डिसीजन जाएगा, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. सब कुछ पीसफुली आपको हैंडल करवाया जाएगा. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स. इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी. इट एनहांसेस द डिग्निटी विद रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन. सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. सिटीजन यहाँ पे क्या है, किसी का गुलाम नहीं है. डेमोक्रेटिक कंट्री में ही इज हिमसेल्फ द रूलर. क्यों? क्योंकि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन में इलेक्ट कौन कर रहा है? वी पीपल, वी सिटीजन्स आर इलेक्टिंग द लीडर्स और पॉलिटिकल पर्सन्स एंड देन they go there in Lok Sabha and they become the ministers and then they form the decisions for us. और अगर उनके डिसीजन हमें अच्छे नहीं लगे तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? हम उनको वोट ही नहीं देंगे, तो फिर वो जीतेंगे नहीं इलेक्शन एंड दे विल लूज द इलेक्शन एंड अनदर कैंडिडेट विल हैव अ स्पेस इन द पॉलिटिक्स टू रूल एंड टू वर्क फॉर द पीपल. एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो गारंटीज द फंडामेंटल राइट्स टू अस. जब वो फंडामेंटल राइट्स हमको दे रहा है तो वो क्या है? वो राइट्स हमारे लिए, हम जैसे हमें जीना, इट गिव्स अस द फ्रीडम ऑफ स्पीच, एसोसिएशन, इक्वालिटी. मीन्स हियर कोई एकदम पुअर है वो भी इक्वल है डेमोक्रेसी में, और कोई रिच है, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे पर्सन, वो भी इक्वल है डेमोक्रेसी में. ना इनको ज्यादा वैल्यू है ना इसको ज्यादा वैल्यू. दे बोथ आर इक्वल एट वन स्टेज. इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. मीन्स वी कैन करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे अगर हमें कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा देन वी कैन फाइल अ PIL. अगर कोई डिसीजन हमारे अगेंस्ट आ रहा है देन वी कैन हैव अ PIL. मीन्स लिटिगेशन हम फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं अगर हमारे अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन है. वी कैन हैव मेनी अदर मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट. पीसफुल प्रोटेस्ट धरने होते हैं, वो भी कर सकती है. वी सिटीजन्स आर फ्री टू डू एनीथिंग इन आवर डेमोक्रेसी. बट the point is just that we should not hurt the sentiments of nationality. मतलब हमारे nationality के sentiments को वो चीज़ें hurt नहीं करनी चाहिए. और जैसे हम क्या कर सकते हैं? We can abstain from voting or we can vote the another candidate of our choice and bring another party in the action and we can make one party lose in the elections. So this is the power of government democracy and जिसे हम लोकतांत्रिक गवर्नमेंट बोलते हैं हिंदी में. सो दिस आर द एडवांटेजेस व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, राइट? इसीलिए आज दुनिया के 90% नेशंस आर ऑप्टिंग फॉर द डेमोक्रेसी. सो देयर आर सम पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. मीन्स हाँ, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन वर्ल्ड बट इट ऑल्सो हैज सम प्रॉब्लम्स विद इट व्हिच कैन बी रेक्टिफाइड. So first leaders keep changing. Means leaders कभी कोई मर जाता है या कभी कोई inability है अगर लीडर में तो वो चेंज होते रहता है या पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होते रहते हैं. तो दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी मतलब गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए कभी डिसीजन ले ही नहीं सकती क्योंकि उनमें ही अगर फाइट चल रहा है तो कैन दे टेक द डिसीजन फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल? नो. नेक्स्ट, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना आजकल कि बीजेपी इज ट्राइंग टू पुल लेग ऑफ कांग्रेस एंड कांग्रेस इज ट्राइंग टू पुल द लेग ऑफ बीजेपी. सो इन दिस पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी. मोरालिटी मीन्स नैतिकता, जो जिस भावना से लोगों के लिए काम करना है वो मोरालिटी का सेंस जो है ना वो कम है पॉलिटिक्स. डिलेज इन डिसीजन मेकिंग. तो इतना जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इट्स सच अ लॉन्ग प्रोसेस. दे हैव टू डिस्कस, दे हैव टू सेंड अ बिल टू लोक सभा, देन राज्यसभा, स्टैंडिंग कमिटीज. तो इतना बड़ा प्रोसीजर है तो तब तक डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और डिले हो जाता है. फोर्थ, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. दिस लीड्स टू बैड डिसीजंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमें पता है ना कि टिकट्स किसको किसको मिलते हैं. जैसे कि आप अगर यूपी का पार्ट देखो तो रवि किशन जैसे एक्टर्स हो गए, हेमा मालिनी जैसे एक्ट्रेस हो गई, इन लोगों को टिकट्स दे रहे हैं. बट डू दिस पीपल नो द रियल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल? कि सच में एक कॉमन पर्सन की क्या प्रॉब्लम है ये इन लोगों को अच्छे से पता है क्या? नो, दे डोंट नो द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल. सो दे कैन नॉट टेक अ गुड डिसीजन फॉर पीपल व्हेन दे डोंट नो कि लोगों को चाहिए क्या, तो वो डिसीजन भी नहीं बनेगा. सो इट लीड्स टू बैड डिसीजन. Fifth, it leads to
बहुत पैसा चाहिए होता है आजकल. We need a huge amount of money if we are standing in the election. So there is bribery, there is मनी पावर ज़्यादा है. जैसे कहाँ से फंड्स अराइज कर रही है आपकी पॉलिटिकल पार्टी, वो कैसे पावर में आ रही है. सो दिस ऑल थिंग्स आर लीडिंग टू करप्शन इन द पॉलिटिक्स. एंड बाय द वे ऑल्सो पॉलिटिक्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बैड फील्ड फॉर एवरी कैंडिडेट मीन्स. एंड देर आर many less candidates who work really for the betterment of the people. And कुछ बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहते. सो दिस आर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ द डेमोक्रेसी. बट फिर भी डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, इन सब से बहुत अच्छा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अकाउंटेबल है, अच्छा है और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है. सो गुड पॉइंट्स का जो वेटेज है वो ज़्यादा है बैड पॉइंट्स से. So this is the chapter for today. We are done with the chapter number 1. I have explained the entire chapter. I am stepping aside. You take a screenshot of this page and mention in your notes. आपको